السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ 10 نومبر کو سری لنکا کا دورہ کریں گے۔ وہ کولمبو میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی گلوبل اکنامک اینڈ ٹیکنالوجی سمٹ 2025 میں خطاب کریں گے۔ سری لنکا کی وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کی جانب سے گٹس سری لنکا کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اولا حلمی نے KTR کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ یہ اجلاس 10 سے 12 نومبر تک کولمبو کے دی کنگز بیری ہوٹل میں منعقد ہوگا۔ KTR اس میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گے۔ اس بین الاقوامی سمٹ میں اختراع، ڈیجیٹل تبدیلی اور علاقائی تعاون جیسے موضوعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دنیا بھر سے پالیسی ساز، صنعت کار اور ٹیکنالوجی لیڈرز گلوبل اکنامک اینڈ ٹیکنالوجی سمٹ 2025 میں شرکت کریں گے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ میاں پور پولیس کے ذریعے بجلی کے تار چوری کرنے والے مجرموں کی گرفتاری عمل میں آئی۔ میاں پور پولیس اسٹیشن کے عملے نے سخت کوششیں کی اور مجرموں 2 افراد کو گرفتار کیا، جنہوں نے 2 زیر تعمیر عمارتوں سے بجلی کی تاروں کی چوری کی۔ گرفتار ملزمان کی شناخت کنچرلا دلیپ کمار، عمر 35 سال، کیب ڈرائیور، ساکن ملکاج گری، اور نشل کریلکر، عمر 28 سال، کیب ڈرائیور، ساکن میاں پور رنگا ریڈی کے طور پر کی گئی۔ سکندرآباد سے نظام آباد کے راستے پہلی بار ریلوے سروس دہلی کے لیے شروع کی جا رہی ہے۔ جنوبی وسط ریلوے کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ سکندرآباد، کاماریڈی، نظام آباد، ناندیڑ اور اکولا کے راستے دہلی تک خصوصی ویکلی ایکسپریس ٹرین کا آغاز کیا جا رہا۔ ریلوے حکام کے مطابق یہ ٹرین ہفتے میں 2 مرتبہ چلائی جائیں گی۔ دہلی تک اس نئی سروس کے آغاز سے متحدہ نظام آباد ضلع کے عوام کے لیے قومی دارالحکومت تک کا سفر مزید آسان اور سہل ہو جائے گا۔ بین ریاستی منشیات فروشی کے ریکٹ کا پردہ فاش۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ ایسٹ زون کی ٹیم نے بنڈلا گڑا پولیس کے ساتھ مل کر گانجے کی نقل و حمل کے لیے 3 افراد کو پکڑ لیا اور ان کے پاس سے ممنوعہ گانجا، جس کا وزن قریب 908.41 کلو گرام تھا، برآمد کر لیا، جس کی کل مالیت 2.70 کروڑ روپے ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف ایک اہم پیش رفت میں کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ ایسٹ زون ٹیم نے بنڈلا گڑا پولیس کے ساتھ مل کر اڑیسہ کے ملکانگیری سے گانجے کو حیدرآباد کے راستے مہاراشٹر لے جانے میں ملوث ایک بین ریاستی منشیات فروشی کے ریکٹ کو کامیابی سے پردہ فاش کیا۔ سویپ پروگرام کے حصے کے طور پر انتخابی عہدیداروں نے اگلے مہینے کی 11 تاریخ کو ہونے والے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے بارے میں آئی ووٹ فار شیور رائے دہندوں میں بیداری بڑھانے کے لیے ایک عنوان سے ایک خصوصی مہم شروع کی ہے۔ اس پروگرام کے حصے کے طور پر پولنگ کی تاریخ کے ساتھ میں ووٹ دیتا ہوں کے اسٹیکرز GHMC سرکل آفس، وارڈ آفس، GHMC اسپورٹس کمپلیکس، فیئر پرائس شاپس اور ICDS مراکز پر چسپاں کیے گئے۔ اس پروگرام کا مقصد رائے دہندگان میں رائے دہی کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور ووٹنگ کے فیصد میں اضافہ کرنا ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر GHMC کمشنر RV کنن کی ہدایت کے مطابق سویپ پروگرام کے تحت آگاہی ریلیاں، مقابلے اور عوامی بیداری کے پروگرام پہلے ہی شروع کیے جا چکے ہیں۔
गौरक्षक शूटिंग मामला, 12 घंटे के अंदर 3 अफराद गिरफ्तार, भत्ताखोरी, 1 करोड़ के नुकसान का मकसद। रच्चाकुंडा पुलिस ने 3 अफराद को इसमें गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में पोचाराम आईटी कॉरिडोर पुलिस ने फायरिंग के वाक़े के सिलसिले में 12 घंटे के अंदर 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम मफरूर है। वाक़े की तफसीलात का इंकशाफ करते हुए पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने बताया था कि ये वाक़या 22 अक्टूबर को यामनपेट घटकेसर में पेश आया था, जब मुलजिम मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी ने गौरक्षक दल के एक कारकुन प्रशांत कुमार उर्फ सोनू सिंह को गोली मार दी। तहकीकात के मुताबिक ये तनाज़ा सोनू सिंह के गैर कानूनी मवेशियों की नकल व हमल और माली तनाज़े को ज़ाहिर करने की वजह से हुआ है। इसी ज़िमन में मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और इस वाक़े की सख्त मजम्मत की। बादज़ा उन्होंने गौरक्षकों पर भी सख्त तनकीद की और कहा कि मंगलहाट का रहने वाला सोनू सिंह घटकेसर क्या करने गया था। देखिए मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। ये जो है ना, इनको काम धंधा कारोबार कुछ भी नहीं है, जो इनका काम यही है कि ये ब्लैकमेलिंग करना, गौ माता के नाम पर ये अपने रोटियां सेकने वाले गौ भक्षक, ये अपने आप को गौ रक्षक करें, डकैत, चोर, हाँ, और ये जो है ना शहर की पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ये। अरे वो गौ माता से उतनी मोहब्बत है तो अल कबीर में जाओ ना, तुम्हारे में दम है तो तुम्हारा बाप काट रहा ना वहाँ, और तुम्हारे पप्पा जो ना यूपी में कितने स्लॉटर हाउस चला रही, मध्य प्रदेश में कितने चल रही, हाँ, वहाँ पर नहीं दिख रहा, कितने जो ना वहाँ पर गौ माताओं की हत्या हो रही, और जो गौशालाओं में चारा नहीं डाल के एड़ियाँ लगड़ के मर रहे ना, हाँ, एड़ियाँ लगड़ के मर रहे ना, पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। और ये गौ माता की रक्षा करने के लिए निकले ये डकैत चोर ये, हाँ। और जब से रेवंत रेड्डी की सरकार आई है, देखिए आप पहले जो ना बकरीद के रियासती रेवेन्यू, हाउसिंग, इतलात और शहरी ताल्लुकात के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि पानी फंड्स की बुनियाद पर तश्कील दी गई रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली कांग्रेस हुकूमत के दौर में नौजवानों को तकर्रुरियों, मुलाजिमतों के मौके फराहम किए जा रहे हैं। 14 अफसरान जिन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ग्रुप 2 की भर्ती में मुंतखब किया गया था और स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सब रजिस्ट्रार के तौर पर तैनात किया गया था। उन्होंने रियासती सेक्रेटरीट में वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की। वजीर ने उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने नए तैनात होने वाले सब रजिस्ट्रारों को इंडियन स्टैम्प एक्ट की किताबें पेश की। वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दहाई में बेरोज़गार नौजवानों की आंखें चंदिया गई थी और अगर नई मुलाजिमतें पैदा करने का वादा पूरा किया जाए तो साबिक़ा हुकूमत की जानिब से भर्ती के अमल में दिखाई गई गफलत और लापरवाही की वजह से बेरोज़गार नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। तेलंगाना स्टेट कमीशन बराए ख़वातीन के ज़रिए एहतमाम गर्ल्स हाई स्कूल बोलारम मेडचल ज़िले में कल के लीडरों को बाइख्तियार बनाने के लिए लड़कियों को बाइख्तियार बनाना के मौजू पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम ने तलबा को साइबर सिक्योरिटी, माहवारी की सफाई और शख्सियत की नशोनुमा जैसे अहम मौज़ूआत पर आगाही फराहम की। तेलंगाना स्टेट कमीशन बराए ख़वातीन की चेयरपर्सन नरेला सारदा ने इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तलबा से खिताब करते हुए उन पर जोर दिया कि वो आज के माशरे में यकसा मौके हासिल करें और ख़ुद एतमादी और इल्म के ज़रिए कल के लीडर बने। उन्होंने ये भी कहा कि साइबर सिक्योरिटी, शख्सियत की नशोनुमा और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल के बारे में आगाही हासिल करना बहुत ज़रूरी है और लड़कियों में और गैंग सैनिटरी पैड तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में राज जितेंद्र 133वें डिवीज़न कॉरपोरेटर बोबली सुरेंदर रेड्डी 133वें डिवीज़न सदर के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासती आईटी और सनत के वजीर डोडेला श्रीधर बाबू ने कहा है कि नई सरमायाकारी लाने के लिए तवील मुद्दती मंसूबे बनाए जा रहे। लाइफ साइंसेस में 2030 तक रियासत को 1 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ लोगों को रोजगार फराहम करना। उन्होंने मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया की लाइफ साइंसेस की आला तरीन बॉडी AS बायोटेक और विक्टोरियन रियासती हुकूमत के ज़र एहतमाम मुश्तरका तौर पर मुनक़िदा AS बायोटेक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 में कुलीदी खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों में तेलंगाना लाइफ साइंसेस सेक्टर में होने वाली पेशरफ्त, मुस्तक़बिल
के मंसूबों, मौके और यहाँ सरमायाकारी के लिए साजगार हालात की वजाहत की। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को ग्लोबल लाइफ साइंसेस हब बनाने के इक़दामात का इंकशाफ किया। वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा कि जोग्राफियाई लिहाज से 11वें और आबादी में 12वें नंबर पर होने के बावजूद मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार में तेलंगाना का हिस्सा 5% से ज्यादा। उन्होंने कहा है कि 2024-25 में तेलंगाना की GSDP की शरह नमू 8.2% थी, जबकि कौमी औसतन सिर्फ 7.6% थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में इतला दी है कि वो मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में मुनक्किद होने जा रहे सरबराही इजलास में जिस्मानी तौर पर शिरकत नहीं करेंगे और वर्चुअल तरीके से खिताब करेंगे। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर शदीद तनकीद की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सामना करने से बचा जा सके। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की गैर हाजिरी महज मसरूफियात की वजह से नहीं, बल्कि इसका असल मकसद साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बराह रास्त मुलाकात से गुरेज करना, जो इस इजलास में शिरकत के लिए कुआलालंपुर पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा, गुज़िश्ता कई दिनों से ये कयास आराइयां थीं कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी कुआलालंपुर इजलास में जाएंगे या नहीं। अब ये तकरीबन तय हो गया कि वो वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि कई आलमी रहनुमाओं से गले मिलने, तस्वीरें खिंचवाने और खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करने के कई मौके उनके हाथ से निकल गए। यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस के दरमियान जारी सिफारती कोशिशों को बड़ा झटका लगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से होने वाली तयशुदा मुलाकात अचानक मनसूख कर दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त किसी अमली पेशरफ्त की उम्मीद नहीं, इसलिए मुलाकात का कोई फायदा नहीं होगा। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने सदर पुतिन के साथ मुलाकात मनसूख कर दी। मुझे महसूस हुआ कि हम अभी इस मुकाम पर नहीं पहुंचे जहां हमें होना चाहिए था, लिहाजा मैंने इसे मुलतवी कर दिया। अलबत्ता मुस्तकबिल में मुलाकात जरूर होगी। ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो रूसी सदर से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान चंद रोज कबल 2.5 घंटे तवील फोन कॉल हुई थी, जिसे ट्रंप ने काफी मुस्बित करार दिया था। ताहम अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लावरोव के दरमियान बातचीत के बाद मुलाकात को मनसूख करने का फैसला लिया गया। व्हाइट हाउस सिर्फ अमेरिकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर ही नहीं, बल्कि सुपर पावर मुल्क की पहचान है। जो भी अमेरिका जाता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो व्हाइट हाउस अपनी आंखों से जरूर देखे, लेकिन अब मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तारीखी इमारत को अपने अंदाज में तब्दील करने पर आमदा हैं और इसलिए अमेरिका की शान कही जाने वाली इस इमारत में बुलडोजर चल रहा। वाज़ेह के सदर बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे। अजीम शान इमारतें और लग्जरी प्रोजेक्ट बनाना उनका कारोबार और मशगला है। 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप ने एक नया मंसूबा शुरू किया था, जिसके तहत व्हाइट हाउस में एक अजीम शान डांस हॉल बनाना था। ये हॉल इतना बड़ा होगा कि इसमें एक वक्त में 999 अफराद बैठ सकेंगे। ये नया हॉल 90,000 मुरब्बा फीट का होगा और इसे तकरीबन $250 मिलियन की लागत से तैयार किया जा रहा। इसके लिए ट्रंप अमेरिकी सुदूर की सरकारी रिहाइशगाह रहे व्हाइट हाउस के हिस्से में बुलडोजर चलवा रहे ताकि अपने मंसूबे को अमली जामिया पहना सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।